नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here I am your host Dr. Jameel Rathore, and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 22 to 25 of Surah Al-Anbiya of the 17th chapter of Al-Quran. As usual, you are requested to listen to these verses attentively, silently, lovingly and respectfully, so that you may have mercy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to listen to these verses carefully as well as repeat with me for better achievement in fluent recitation of Holy Quran. लव, इसको लो नहीं पढ़ेंगे बल्कि लव. लव कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता
फसुब्हानल्लाहि फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा। वक्फ की सूरत के स्टॉप की सूरत में हम पढ़ेंगे आलिहा और मिलाकर पढ़ें तो फिर ये ता जो कि गोल नजर आ रही है इसको ता ही प्रोनाउंस किया जाता है। अदरवाइज वक्फ करेंगे तो ये गोल ता हा में तब्दील हो जाया करती है, इस तरह आलिहा। लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे तो आलिहतन कुल हातू बुरहानकुम हादा ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون And we are in the third and final segment of our program, in which we are showing these verses on your television screen, Arabic calligraphic as well as transliterated in Roman for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. In Roman, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. In Urdu,
अगर होते जमीन व आसमान में कोई और माबूद सिवाय अल्लाह ताला के तो ये दोनों बर्बाद हो जाते. In English, if there were therein gods beside Allah, then verily both the heavens and the earth had been disordered. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. In Roman, فسبحان الله رب العرش عما يصفون. In Urdu, पस पाक है अल्लाह ताला जो अर्श का रब है उन तमाम नाजेबा बातों से जो वो करते हैं. In English, glorified be Allah, the Lord of the throne, from all that they ascribe unto Him. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. In Roman, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. In Urdu, नहीं पुरसिश की जा सकती उस काम के मुताल्लिक जो वो करता है और इन तमाम से बासपुरस होगी. In English, He will not be questioned as to that which He doth, but they will be questioned. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. In Roman, أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. In Urdu, क्या उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह ताला के सिवा और माबूद? ए हबीब, आप उन्हें फरमाइए, पेश करो अपनी दलील. In English, or have they chosen other gods beside Him? Say, bring your proof of their Godhead. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. In Roman, هذا ذكر من معي وذكر ما قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. In Urdu, ये कुरान जो नसीहत है मेरे साथ वालों के लिए और दूसरी कुतुब जो नसीहत हैं मेरे पेशराओं के लिए सब मौजूद हैं. इनका कोई हवाला दो, बल्कि हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर हक को नहीं जानते, इसलिए वो इससे मुंह फेरे हुए हैं. In English, this is the reminder for those with me and those before me, but most of them know not the truth, and so they are averse. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
in Roman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ in उर्दू, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल मगर ये कि हमने वही भेजी उसकी तरफ कि बिलाशुबा नहीं है कोई माबूद बजुज मेरे, बस मेरी इबादत किया करो. In English, and we sent no messenger before thee, but we inspired him, saying, there's no God save me, Allah, so worship me. नाज़रीन किराम, हमारा सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा और इन आयात में इनका आगाज़ बड़े खूबसूरत अंदाज से हो रहा है. लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता. रब्बुल जलाल ने अपनी तौहीद की अज़ीम शान दलील पेश की है, बताया है कि अगर इस ज़मीन और आसमान में एक से ज़ायद खुदा होते तो फसदता, इनमें फसाद पैदा हो जाता, ये टूट कर बिखर कर रह जाते. किस तरह? इस तरह कि हम अपनी अक्ल से पहचान सकते हैं कि सूरज अपने मुकर्ररा दौरानिया कंप्लीट करके जब सुबह होती है मशरिक़ से तुलू होता है और फिर मगरिब में जाकर गुरूब हो जाता है. एक वक्त में सूरज आधी दुनिया को रोशन करता है, फिर वहाँ चांद आ जाता है, फिर दूसरी दुनिया को आधे वक्त में रोशन करता है, फिर चांद वहाँ से चला जाता है. तो मालूम हुआ सूरज और चांद की गर्दिश है जिसकी वजह से रात और दिन मुअय्यन होते हैं. ये यकीनन एक ही निज़ाम तो है. ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा कि सूरज मगरिब से आ रहा है या चांद दिन में तुलू हो रहा है, दिन में चमक रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा. तो ये सिस्टम हमें बताता है कि ये सिस्टम एक है, ये यूनिवर्सल, ये पोलर जो सिस्टम है ये एक है. तो ये इस बात की निशानदही है कि यकीनन खुदा भी एक है. अगर एक से ज़ायद खुदा होते, एक कहता है मैं सूरज को मगरिब से निकालूंगा, दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं सूरज को मशरिक़ से निकालूंगा, दोनों सूरज को खींचते वो टूट जाता. एक कहता नहीं मैं रात को 24 घंटे का बनाऊंगा, एक कहता नहीं मैं दिन को 36 घंटे का बनाऊंगा. तो यकीनन ये नज़्म कायनात बिगड़ कर रह जाता. रात और दिन की जो गिनती है, जो तब्दीली है, सुबह और शाम की जो औकात है जिनमें हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सारे तबाह बर्बाद होकर रह जाते, सिस्टम खत्म हो जाता. हमें मालूम है कि सुबह होनी है, हमें ऑफिस में जाना है, अर्निंग करनी है, कमाना है. अगर 36 घंटे की रात होती तो इंसान तो भूख से मर जाता, सुबह होती तो वो कमाता. तो मालूम हुआ सिस्टम एक है. ये इस बात की दलील है कि वो रब्बुल जलाल भी एक है. वो कुफ़ार ये भी तो कहा करते थे कि अर्श का खुदा अलग है, ज़मीन का खुदा अलग है. रब ने फरमाया नहीं, फसुबहान अल्लाह रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून. अल्लाह पाक है, याद रखो वो अर्श का भी रब है, वो फर्श का भी रब है. तुम ये जो नाजीबा बातें करते हो ये अल्लाह तबारक व तआला इनसे पाक है. फिर फरमाया ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून. बड़ी प्यारी बात बताई. रब ने फरमाया कि तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हें दुनिया में हमने नेमत दी, कान दिए, आंख दिए, हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, तुम्हें अपनी नेमतें दी, हर चीज दी, तुमसे सवाल किया जाएगा तुमने उसके खिलाफ क्यों किया. ला युसअलु, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ. लेकिन चूंकि मैं देने वाला हूँ, तुम मखलूक हो, तुमसे सवाल किया जाएगा. चुनाचे दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें रब्बुल जलाल की इन प्यारी प्यारी तौहीद को बयान करने की तौफीक अता फरमाए. और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौहीद पर अमल करके रिसालत, तौहीद, इनमें जो अपने अपने सिफात हैं, इनमें जो अपने अपने अंदाज हैं, यकीनन वो तौहीद का मालिक है, ये रिसालत के मालिक हैं. लेकिन याद रखिए कि तौहीद रब्बुल जलाल की होती है और रिसालत वही अता किया करता है. तो एक खालिक है, दूसरा मखलूक है. तो खालिक ने मखलूक को भेजा, मखलूक रहनुमाई करती है. अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अपने प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इताअत और अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन. इक़रा व रब्बुका